بچوں کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں تو عیدیاں ملی ہوئی ہیں اور سیر و تفریح کی جو پارکس ہیں، سیر و تفریح کی جو جگہ ہیں وہ تو بند ہے، لیکن ہم جو عید ہے اور عید پہ جو ہے وہ انجوائے کرنے کے لیے یہاں پہ اس میلے کا رخ کرتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں اور اپنی عیدیاں جو ہیں وہ لٹاتے ہیں، جبکہ ان کے والدین کا بھی کہنا ہے کہ ہم تو گھروں تک محدود ہیں، گھروں تک رہ جائیں گے، لیکن بچے جو ہیں وہ بور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ باہر نکلتے ہیں اور میلے جو ہیں وہاں پہ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے میلے جو ہیں وہ سجائے گئے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ اپنی عیدیاں جو ہیں وہ لٹاتے ہیں۔ جی شکریہ اویس محمود۔ سرگودہ میں عید کے دوسرے روز بھی مٹھائی کی دکانوں اور بیکریز پر رش ہے۔ لوگ اپنے رشتہ داروں کے لیے مٹھائیاں اور کیک خرید رہے ہیں تاکہ وہ میٹھی عید پر میٹھی محبت بانٹ سکے۔ ملک عابد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملک عابد بتائیے گا۔ جی بالکل، اگر عید الفطر کے حوالے سے بات کی جائے تو آج عید کا دوسرا دن ہے، لیکن یہاں پر اگر بات کی جائے پہلا دن جو ہے وہ تو گزر گیا، لیکن آج دوسرے دن جو ہے لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ مٹھائیوں کی دکانوں پر اس وقت رخ کر رہی ہے، کیونکہ دوسرے دن جو ہے لوگوں کی زیادہ تعداد کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب کے ہاں جائیں اور خصوصی طور پر میٹھا ضرور لے کے جائیں، کیونکہ میٹھی عید ہے، میٹھی عید پر اگر میٹھا نہ ہو تو یہ میٹھی عید جو ہے وہ پھیکی ہو جاتی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ کسٹمر موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں پر مٹھائی لینے آئے ہیں، وہ اس کا کیا مقصد؟ جی آپ بتائیں گے کہ اب آپ جو مٹھائی کی دکان پر آئے ہیں، اس کا مٹھائی کہاں لے کے جانی کس بات؟ پہلے دن ہم اپنے گھر میں عید مناتے ہیں بچوں کے ساتھ، پھر دوسرے دن ہم عید وغیرہ کو جاتے ہیں مٹھائی لے کے۔ میٹھی عید ہے، بچے خوش ہوتے ہیں، ہم بھی خوش ہوتے ہیں، سارے خوش ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں آپ کو۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ خصوصی طور پر کیونکہ عید کا دوسرا دن ہے اور خاص طور پر اس وقت کافی رش جو ہے وہ اس وقت دکانوں پر نظر آ رہا ہے، خاص طور پر مٹھائی کی دکانوں پر اس وقت کافی رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کیونکہ عید کا دوسرا دن ہے، خاص طور پر لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ مٹھائی لے کر اپنے بہن بھائیوں کے طرف اور خاص طور پر جو عزیز و اقارب ہیں ان کی طرف جائیں تاکہ ان کو وہ عید ملیں اور ان کو مٹھائی بھی پیش کریں۔ یہاں پر مختلف قسم کی جو مٹھائیاں ہیں وہ لوگ میٹھے کو جو ہے لے کے جا رہے ہیں تاکہ اپنے عزیز و اقارب کو دے کر وہ بھی میٹھی عید کو عید مبارک کہہ کے ان کو ساتھ جو ہے وہ اپنی خوشیاں بانٹ سکیں۔ بہت شکریہ ملک عابد۔ کورونا وائرس اور شدید گرمی، لاہور کے باسی عید کے دوسرے روز بھی گھروں سے نہیں نکل سکے۔ شہری گھروں میں ہی اپنی فیملیز اور دوستوں کے ساتھ عید گزارنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے نبیل لقوی۔ جی نبیل۔ جی بالکل، اس دفعہ لاہوریے جو ہیں وہ روایتی انداز میں عید مناتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ کہیں وجہ ہے تو کرونا وائرس کی، تو کہیں گرمی کی وجہ جو ہے وجہ سامنے آئی ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو لاہور کے مال روڈ کی صورتحال بتا سکے تو یہ وہ روڈ ہے جو عید کے دنوں میں خاص طور پر جو ہے یہاں پہ خاصا رش ہوتا تھا لوگوں کا۔ یہاں سے لوگ فورٹرس کا رخ کیا کرتے تھے یا دیگر مقامات کا یہاں سے لوگ رخ کرتے تھے، لیکن اس وقت مکمل طور پہ ہمیں خالی نظر آ رہا ہے۔ اس مال روڈ کے بعد اگر میں نہر کی آپ لوگوں کو صورتحال بتاؤں تو لاہور کی نہر جو مشہور نہر ہے، یہاں پہ بھی ہمیں کہیں تھوڑی بہت ٹریفک نظر آ رہی ہے، معمول سے انتہائی کم جو ہے وہ ہم لوگوں یہاں پہ ٹریفک نظر آ رہی ہے۔ لوگ اس وقت اس دفعہ جو روایتی انداز میں لاہوریے جو ہیں وہ عید مناتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ کرونا وائرس کے باعث جو ہے لاک ڈاؤن کے باعث جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ عید مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو دوسری طرف جو ہے وجہ گرمی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ آج درجہ حرارت جو ہے وہ 43-44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا لاہور کا۔ شدید اس وقت گرمی اس وقت ہے، اس لیے لاہوریوں نے اس دفعہ جو ہے ترجیح دی ہے گھروں میں بیٹھ کر عید منانے کو، اور کیونکہ لاہور زندہ دل قوم ہے، لاہور کی شہری جو تھے لاہور کے وہ لازمی نکلا کرتے تھے عید کے ایام میں، خاص طور پہ پارکس کا رخ کرتے تھے، ریسٹورنٹس کا رخ کرتے تھے، لیکن اس دفعہ جو عید ہے مکمل طور پہ اگر ہم دیکھیں ماضی کی نسبت تو روایتی انداز میں نہیں منائی جا رہی لاہوریوں کی جانب سے۔ لاہوری جو ہے اب اپنے گھروں میں بیٹھ کر فیملیز کے ساتھ دوستوں کے ساتھ جو مزے کے پکوان انجوائے کر رہے ہیں، اور جو عید منائی جا رہی ہے اس دفعہ وہ گھروں تک ہی محدود ہو گئی ہے۔ جی شکریہ نبیل لقوی۔ ملتان کی گرمی یوں تو بہت مشہور ہے، لیکن گرم موسم میں ٹھنڈا تھار سردائی کا گلاس طبیعت میں فرحت کا احساس پیدا کر دیتا ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد سردائی کے اسٹال سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ احمد کاشف موجود ہیں۔ احمد کاشف بتائیے گا۔ جی بالکل، عید الفطر کی خوشیاں جاری ہیں۔ ملتان میں پارکس ہیں بند، لیکن اس وقت شہری اگر باہر کو گھومتے ہیں تو وہاں پر ان کو اگر سخت گرمی میں سردائی کا گلاس میسر ہو جائے تو کیا کہنے ہوں گے۔ شہری یہاں پر کچھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سردائی کے سٹال پر ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نوجوان مجھے بتاؤ، سردائی تھی کیسا لگا؟ گرمی تو بہت ہے۔ اچھا لگا بھائی جان، گرمی تو بہت ہے مگر ٹھنڈائی اچھی ہے۔ گرمی کا بھی موسم آپ کو پتہ ہے کیسا ہے، اور پارک بند پڑا ہوا بس ابھی۔ پارکس تو بند ہے، پھر عید کیسے گزر رہی ہے؟
बस गर्मी के हिसाब से पता घर गुजर रही है। घर ही बैठे हुए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर शहरी तो ये कहते हैं कि घर में एंजॉय कर रहे हैं और इनसे बात करते हैं। मुझे बताओ सरदाई में क्या क्या चीज़ें डालते हैं आप? उसका बादाम, काली मिर्च, सफेद जीरा, इलायची, सौंफ, ये वगैरह डालते हैं हम भाईजान। तो इस मरतबा कैसा सीज़न कैसा जा रहा है जी? सीज़न कैसा जा रहा है? सीजन है बहुत दुरुस्त जा रहा है माशाल्लाह, वो हालात नहीं रह गए जो पहले थे। अच्छा जी, इस वक्त कहना इनका ये है कि सीज़न भी अच्छा जा रहा है और खालिश कुदरती अशिया के साथ मिलकर ये सरदाई जो है ये बना रहे हैं और इस वक्त ईद का मौका है तो शहरी यहाँ से सरदाई पीने में मसरूफ़ हैं। जी बहुत शुक्रिया अहमद काशिफ। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ईद की तातीलात नथिया गली के पुरफिजा मकाम पर गुजार रहे हैं, बगैर किसी प्रोटोकॉल वॉक करते रहे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ईद उल फित्र की तातीलात पर सियाहती मकाम नथिया गली में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने नथिया गली निमली मीरा रोड पर सुबह वॉक भी की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने मकामी अफराद से गपशप भी लगाई और हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से पूछा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बगैर किसी प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के वॉक करते रहे। मकामी अफराद ने वज़ीर-ए-आज़म को अपने दरमियान पाकर मसरत का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है सूबे में आज कोरोना से मजीद 2 मरीज चल बसे, जिसके बाद अमवात की तादाद 369 तक जा पहुंची। 24 घंटों के दौरान 443 नए केसेस के बाद कुल तादाद 22,934 हो गई। सिंध में आज कोरोना से 2 हलाकतें हो गईं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 24 घंटे के दौरान 473 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। केसेस की तादाद 22,934 तक जा पहुंची है। कराची में आज नए 214 केसेस सामने आए। मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 46 वेंटिलेटर्स पर हैं। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक आज 614 मरीज सेहतयाब होकर अपने घरों को भी गए। ईद के बायस कम टेस्ट किए जा सके, इसलिए नए केसेस कम आए हैं। कोरोना को कंट्रोल करने के बाद मुआशी बहाली पर तवज्जो दी जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना ने मजीद 34 अफराद की जान ले ली। मूजी वबा से जांबाक अफराद की तादाद 1167 हो गई। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 10,049 टेस्ट किए गए, जिनमें 1,748 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। अब तक मजमूई तौर पर 4,83,656 टेस्ट किए जा चुके हैं। मूजी वबा ने मजीद 24 घंटों के दौरान मजीद 34 अफराद की जान ले ली। वायरस से अमवात की तादाद 1,167 हो गई। कोरोना के शिकार 17,482 अफराद सेहतयाब हो गए। सिंध में कोरोना से 22,491 और पंजाब में 20,077 अफराद मुतासिर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वबा ने 7,905, बलोचिस्तान में 3,407 लोगों को मुतासिर किया है। इस्लामाबाद में 1,641, आजाद कश्मीर में 209 और गिलगित बल्तिस्तान में 619 लोग वायरस का शिकार हुए। सऊदी हुकूमत की कोरोना के खिलाफ हिकमत अमली कामयाब न हो सकी। मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत मुल्क भर की मसाजिद बंद करने के बावजूद भी ईद पर 2,300 केसेस मंजर आम पर आ गए। सऊदी अरब में ईद उल फित्र पर कोरोना वायरस के 2,399 नए केसेस सामने आए और 11 अमवात हुई। इस तरह सऊदी अरब में इस मोहलिक वबा का शिकार होने वाले अफराद की तादाद 72,560 हो गई है। सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक दारुल हुकूमत अल रियाज में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केसेस का इंदराज हुआ है और वहां 742 नए मरीजों की तशखीस हुई है। मक्का मुकरमा में 611 नए केसों की तस्दीक हुई है और जद्दा में 474 केस रिकॉर्ड किए गए हैं। सऊदी हुकूमत ने दीगर इस्लामी ममालिक की निस्बत ज्यादा सख्त पाबंदियां आयद कर रखी हैं। सऊदी हुकूमत ने कोरोना वबा के आगाज से अब तक मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत मुल्क की दीगर तमाम मसाजिद को नमाज के लिए बंद कर रखा है, जबकि दीगर कई इस्लामी ममालिक में कवायद और ज़वाबित के बाद नमाजें जारी हैं। ईरान में कोरोना वबा के बाद जिंदगी मामूल पर लौटने लगी। इमाम रजा अलैहिस्सलाम और बीबी मासूमा कुम के हरम को जायरीन के लिए खोल दिया गया है। दुनिया भर की तरह ईरान में भी कोरोना लॉकडाउन में नरमी के बाद मामूलाती जिंदगी बहाली की जानिब गामजन है। ईरानी हुकूमत ने मशहद में इमाम रजा अलैहिस्सलाम और कुम में फातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के हरम मुबारक को जायरीन के लिए खोल दिया। 69 रोज की बंदिश के बाद मुकद्दस मकामात जियारत के लिए खोले तो जायरीन की बड़ी तादाद पहुंच गई। ताहम हरम की जियारत के लिए तिबी प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है और जायरीन भी तिबी हिदायत के मुताबिक जियारत का शर्फ हासिल कर रहे हैं।
कराची की छोटी बड़ी सड़कों पर जा बजा लगाए जाने वाली कैट आइज गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ हादसात का सबब बन रही हैं। सड़कों पर आने जाने वाले अफराद जगह जगह पर नस्ब की जाने वाली कैट आइज से शदीद परेशान दिखाई देते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अता हुसैन। दुनिया भर की सड़कों से कैट आइज सिस्टम को खत्म करने का सिलसिला जारी है, लेकिन कराची में गैर मयारी कैट आइज शहर की अहम शाहराहों पर मुसलसल लगाई जा रही हैं, जिससे हर तरह की सवारी रखने वाला शख्स जहनी उलझन का शिकार है। गाड़ी, बस, ट्रक हो या मोटरसाइकिल, चलाने वाले कहते हैं कि कैट आइज न सिर्फ गाड़ी को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि इसके नोकीले कोने बाज औकात नए टायर्स को भी काट देते हैं, जो माली नुकसान के साथ साथ बड़े हादसे का सबब बनता है। उसको प्रॉपर लगे, इसकी अक्सर कीलें लगी होती हैं या कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता है, जिससे गाड़ी के टायरों पे नुकसान होता है। इससे बाइक में पंचर हो जाता है, गोल्ड टायर लगाते हैं उसको, वो लगाते वो निकल जाते हैं, टूट जाते हैं। सर बिल्कुल नुकसान है कैट आइज लगवाने से, क्योंकि देखें रबर और लोहे से जब कोई टकराता है तो लाजमी सी बात है रबड़ को नुकसान है। कैट आइज जो हमारे मुल्क में लगाई गई है वो लोहे की हैं। पूरी दुनिया के अंदर कैट आइज जो लगती है वो लोहे पे नहीं होती, केमिकल्स के ऊपर कन्वर्ट होती है, और हमारे मुल्क के अंदर वो लोहे पे कन्वर्ट कर दी गई। शहरी कहते हैं कि कैट आइज की जगह स्पीड ब्रेकर से पहले अगर रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल किया जाए तो उससे अंधेरे में ड्राइवर्स को न सिर्फ सहूलत होगी, बल्कि हर तरह की गाड़ी भी स्टील की बनी 2 इंच की कैट आइज से जान छूट जाएगी। हर चीज प्रॉपर होती है, नॉर्मल आप छोटे लगाएं, आप सीमेंट के छोटे छोटे स्टेप्स बनाएं, जिससे गाड़ियों के टायर को भी नुकसान ना हो और कोई इंसिडेंट भी ना जो है ना पेश है। गाड़ियों की मुरम्मत करने वाले अफराद कहते हैं जिस तरह की कैट आइज हमारी सड़कों पर लगी हुई हैं, वो गाड़ी के एक्सेल और सस्पेंशन को आहिस्ता आहिस्ता खराब करती है। जो लगे हुए हैं इससे सस्पेंशन को नुकसान होता है, टायर बस्ट होते हैं, बाइक वाला आगे जा रहा है, गाड़ी वाला पीछे से ब्रेक नहीं ले रहा, बाइक वाले ने ले रही, एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। सस्पेंशन के आए दिन काम निकलते रहते हैं गाड़ियों के, जो पुरानी गाड़ी उनके चेजेस टूट जाते हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द सड़कों से कैट आइज को हटाकर शहरियों को जानी और माली नुकसान से बचाया जाए। शहर की शाहराहों पर लगी ये कैट आइज सिर्फ गाड़ियों की स्पीड को ही कम नहीं करती, बल्कि गाड़ियों की जिंदगियां भी कम कर देती हैं। कैमरामैन फैजान खान के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। 1849 में बनने वाला लाहौर का जनरल पोस्ट ऑफिस, जिसका एक एक हिस्सा बनाने वालों की महारत की अजीम रुदात सुनाता है। अजीम इमारत मलकाए बरतानिया की 50वीं सालगिरह के मौके पर तामीर करवाई गई। रिपोर्ट कर रहे हैं जैन नकवी। लाहौर माल रोड पर वाक़ जनरल पोस्ट ऑफिस की इमारत बरतानवी राज की अक्कासी करती है। जनरल पोस्ट ऑफिस अनारकली के इलाके में अजायब घर के करीब 1849 में तामीर हुआ। ये इमारत मलका बरतानिया की 50वीं सालगिरह के मौके पर तामीर करवाई गई थी। 1912 में मौजूदा खुशनुमा जदीद वज़ा की गई इमारत तामीर हुई, जो आज GPO के नाम से भी पुकारी जाती है। ये इमारत हिंदू मुस्लिम और यूरोपियन फने तामीर का हसीन इम्तजाज है। आली शान इमारत 2 हिस्सों में तकसीम है, एक नाभा रोड और दूसरा हिस्सा अपर मार रोड पर है। इस इमारत का इंतजाम महकमा टेलीग्राफ के सुपुर्द था, चनाचे डायरेक्टर महकमा टेलीग्राफ की निगरानी में ये इमारत तामीर की गई। इस इमारत का डिजाइन सर गंगा राम ने तजवीज किया था। इमारत इस कदर वसी है कि नीचे की मंजिल में 33 कमरे और बालाई मंजिल में 19 कमरे हैं। इसमें एक कुशादा मैदान है जो अमले की तफरी और खेल कूद के लिए मखसूस है। GPO में 1 क्लॉक टावर और 4 बुर्जियां हैं। इमारत के मीनार मलका बरतानिया की तर्ज पर तामीर किए गए हैं। ये अंग्रेजी तर्ज तामीर का एक खसूसी अंदाज है। दूध का सवाल है, वो तो डेफिनेटली कुछ हद तक डिक्रीज हुए, लेकिन हमारा पार्सल मेल का वॉल्यूम काफी इंक्रीज हुआ है। खास तौर पे इन दिनों में, जिन दिनों लॉकडाउन की जो सूरत हाल थी, इनमें क्योंकि बाकी कोरियर सर्विसेज उस तरीके से अपना पार्ट प्ले नहीं कर पा रही थी, तो पाकिस्तान पोस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ गई थी। तो ईद कार्ड्स का ट्रेंड अब जरा थोड़ा जो है कम हो गया, क्योंकि जाहिर है एक ईद कार्ड लेना, फिर उसको पूरा वो करके उस तरीके से रैप करना, फिर देना, वो एक जरा थोड़ा सा जो है ना स्टेप्स को काउंट किया जाता है। तो उससे बेहतर लोग आजकल ये समझते हैं कि मोबाइल पे मैसेज कर दिया जाए। माल रोड की जानिब से GPO में दाखिल हों तो गेट नंबर 1 पर शहर का सबसे पुराना और पहला लेटर बक्स मौजूद है। 1855 का ये लेटर बक्स नई अनारकली से मुल्हिका धनी राम रोड पर नस्ब था, लेकिन अब इसे GPO में ही नस्ब किया गया है। नो डाउट कोरियर जो है सोर्सेज के बावजूद
पाकिस्तान पोस्ट उनसे बेहतर काम कर रहा है, उनसे बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनसे बहुत बड़ा है। कोरियर्स लिमिटेड एरियाज में काम करती हैं, जबकि हम पूरे मुल्क को, पूरे पाकिस्तान को कवर करते हैं। हो गई है नो डाउट। अगर पहले 100 आप लगाएं तो 100 में से अब 10% लोग ऐसे होंगे या 5% लोग ऐसे हैं तो जो थ्रू लेटर जो है या उसकी लेटर की अहमियत को समझती हैं। क्लॉक टावर से 2 रोइया सीढ़ियां जो लकड़ी से तैयार की गई हैं निहायत दिलकश अंदाज में ऊपर की मंजिल तक ले जाती हैं। जीपीओ के एक हॉल में मिस्टर अब्दुल रहमान शहीद की तस्वीर आवेजा की गई है। कहा जाता है कि अब्दुल रहमान एक पोस्ट मास्टर था जो कैश ले जाते हुए धर्मपुरा के मुकाम पर कत्ल हुआ था। इसी हॉल की एक नुक्कड़ में पुरानी यादगारी टिकटें और पोस्ट कार्ड मौजूद हैं। जीपीओ में 1860 की एक मॉडल बेल अब भी दिखाई देती है। जीपीओ की छत पर अब भी एक पुराना हूटर नस्ब है जो किसी भी इमरजेंसी की सूरत में तमाम काम करने वालों को खबरदार करता है। गो के क्लॉक टावर अब नापैद हो चुका है, लेकिन कहा जाता है कि एक जमाना था कि इस क्लॉक टावर की बाज़गश्त पूरे शहर में सुनी जाती थी। पाकिस्तान में डाक खाना का मौजूदा निजाम हुकूमत बरतानिया का रायज शुदा है। किसी भी सल्तनत में ज़राए रसरो रसायल और मवासलात की अहमियत और अफादियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हुकूमत बरतानिया ने 1849 में लाहौर को फतह किया और इसी साल जनरल पोस्ट ऑफिस का कयाम अमल में लाया गया। कैमरामैन अब्दुल रहमान के हमरा ज़ैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। और अब बात करेंगे खिज़ां रसीदा वादी की, जहां कश्मीर में भारतीय मजालिम का सिलसिला न थम सका। काबिज भारतीय फौज ने मजीद 2 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद कर दिया। नौजवानों को नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान निशाना बनाया गया। वादी जन्नत नजीर भारतीय फौज के मसालम की अनगिनत दास्तानों के अमीन जमीन का चप्पा चप्पा मकीनों पर टूटे कैर कसब की गवाही दे रहा है। एक तरफ वबाई हमलों ने कश्मीरियों की जान असाब में डाल रखी है तो दूसरी तरफ भारतीय दरिंदा सिर्फ फौज है कि हर रोज मजलूमों के खून से होली खेलने में मसरूफ है। शाम ढलते ही खून आशाम भारतीय अलकार इंसानों को शिकार बनाने के लिए निकल खड़े होते हैं। नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में भारतीय फौज के हाथों नौजवानों का कत्ल आम मामूल बना हुआ है। अगवा, लूटमार और इस्मत दरी भारतीय फौज का अशार बन चुका है। भारतीय फौज वादी में इंसानियत की तजलील की तमाम हदें पार कर चुकी है। इसके बावजूद अक़वाम आलम ने सूरत हाल पर मैनी खेज खामोशी इख्तियार कर रखी है। मकबूजा कश्मीर में एक और ईद दहशत और वहशत के साए में गुजर गई। जबरी पाबंदियां बरकरार रहीं, बुनियादी इंसानी हुकूक तक मुअत्तल रहे। लापता कश्मीरियों के अहले खाना प्यारों को याद कर करके रोते रहे। मुजाहिरों के खौफ से काबिज इंतजामिया ने चप्पे चप्पे पर एहलकार तैनात कर दिए हैं। वादी जन्नत नजीर में एक और ईद आई और खामोशी से गुजर गई। खिज़ां रसीदा मुरझाए चेहरे उम्मीद बहार में सरापा इंतजार ही रहे। नन्हे बच्चों की मासूम निगाहें लापता किए गए वालिद की राह तकती रहीं। माए लखते जिगर को देखने की आस में तड़पती रहीं। अफसोस, ईद गुजर गई। अपने प्यारों के इंतजार में बेचैन दिलों को करार न आ सका। ईद के मौके पर बुज़दिल फौज ने नाकाबंदी मजीद सख्त कर दी। नमाज ईद भी अदा न करने दी गई। सदाए हुर्रियत से खाइफ काबिज इंतजामिया ने कर्फ्यू मजीद सख्त कर दिया। वादी के चप्पे चप्पे पर भारतीय फौज तैनात है। गलियों में गश्त जारी है। इंतहा पसंद मोदी हुकूमत ने वादी में गुज़िश्ता साल 5 अगस्त से मुकम्मल कर्फ्यू लगा रखा है। काबिज फौज की मजलूम कश्मीरियों के खिलाफ नफरत अंगेज कार्रवाइयों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन नौजवानों की हलाकत और जबरी गुमशुदगियों के वाकयात मंजर आम पर आते रहे हैं। सर्च ऑपरेशन की आड़ में घरों में घुसकर तलाशी और मालो असबाब लूटने का सिलसिला मामूल बना हुआ है। बुज़दिल भारतीय फौज ने खवातीन की इस्मत दरी को जंगी हथियार बना रखा है। खुराक की तरसील पर पाबंदी है। इलाज की सहूलियात तक रसाई मुमकिन नहीं। राब्ता सर्विसेज भी ताहाल बंद हैं। सऊदी हुकूमत ने दहशत गर्दी के खिलाफ मगरबी ममालिक की मुआवनत करने वालों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आला सऊदी एहलकार एक शहरी के अहले खाना को सख्त इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। मौजूदा हालात में जहां दुनिया भर के ममालिक दहशत गर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार हैं, लेकिन सऊदी हुकाम दहशत गर्दी के खात्मे पर एक शहरी से सख्त नाराज हो गए हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक
मगरबी ममालिक में अलकायदा का एक बड़ा बम हमला नाकाम बनाने में मदद करने वाले डॉक्टर साद जबरी 3 साल कबल कनाडा फरार हो गए थे। अब डॉक्टर जबरी के सबसे बड़े बेटे का कहना है कि डॉक्टर जबरी के बच्चों को सऊदी हुकाम ने यरगमाल बना लिया है। खालिद जबरी का कहना है कि 21 साल उम्र और 20 साल सारा को 16 मार्च को अगवा किया गया था। दुनिया के कई ममालिक में इस मामले पर गहरी तशवीश पाई जाती है कि सऊदी हुकाम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में मदद देने वालों को सजा क्यों दे रहे हैं। चीनी वजीर खारजा ने खदशा जाहिर किया है कि अमेरिका और चीन सर जंग के दहाने पर पहुंच चुके हैं। अमेरिका में कुछ सियासी ताकतें दोनों ममालिक को सर जंग की जानिब धकेल रही हैं। आलमी वबा के दौरान भी अमेरिका और चीन में कशीदगी बरकरार। अमेरिका और चीन के माबैन कोरोना वायरस और हांगकांग के तशख्खुस समेत मुतादिद उमूर पर कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है। चीनी वजीर खारजा वांग शी ने मीडिया से गुफ्तगू में सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अमेरिका चीन को सर्द जंग की जानिब धकेल रहा है। बीजिंग में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वजीर खारजा कहा कि चंद अमरीकी ताकतें अमेरिका और चीन के ताल्लुकात को यरगमाल बनाना चाहती हैं। उन्होंने कोरोना वायरस से मुतालिक तहकीकात की हिमायत करते हुए कहा कि चीन सियासी मुदाखलत से पाक तहकीकात के हक में है। अमेरिका में मुतादिद सियासी कुव्वतें चीन और अमेरिका के ताल्लुकात के साथ खेल रही हैं और दोनों मुल्कों को एक नई सर्द जंग की जानिब धकेला जा रहा है। वांग शी ने अपने बयान में वाज़ेह नहीं किया कि वो अमेरिका में किन सियासी कुव्वतों की जानिब इशारा कर रहे हैं। ताहम अमेरिका में चीन पर होने वाली तनकीद में सदर ट्रंप पेश हैं। सदर ट्रंप मुतादिद मरतबा कोरोना वायरस के फैलाव की इब्तिदा के वक्त चीनी इक़दामात को तनकीद का निशाना बना चुके हैं। सदर ट्रंप का कहना है कि कोरोना वायरस के फैलाव से मुतालिक चीन ने मालूमात छुपाई हैं और आलमी बिरादरी को दुरुस्त और फौरी तौर पर मुतनब्बे नहीं किया। बहन और भाई का रिश्ता कुदरत का अनमोल तोहफा। सोशल मीडिया पर बहन भाई की बाहमी मोहब्बत की अक्कास वीडियो सारफीन की तवज्जो का मरकज बन गई। माजूर बहन बास्केटबॉल का शौक तो रखती है मगर माजूरी उसकी राह में हायल है। कोशिश के बावजूद बॉल को रिंग में फेंकना निहायत दुश्वार दिखाई देता है। भाई ने बहन की खुशी के लिए बास्केटबॉल रिंग को ही घसीटकर बहन के इतना करीब कर दिया कि थोड़ी सी जिद्दोजहद के बाद माजूर लड़की ने बॉल को रिंग में फेंक दिया। बहन की कामयाबी पर भाई ने दिल खोल कर दाद दी। मुल्क के दीगर शोबों की तरह मुख्तलिफ खेलों के खिलाड़ी भी ये ईद सादगी से मना रहे हैं, जिसकी वजह से आलमी वबा, कोरोना और कराची तैयारा हादसे है। खिलाड़ियों ने अपने पैगामात में शहरियों से भी सादगी के साथ ईद मनाने और एहतियात को जिंदगी का लाजमी जुज बनाने की तजवीज दी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है, तो इसके लिए अपने घर वालों को और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और इसकी एहतियात करें। अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस और कराची में होने वाले तैयारे हादसे की वजह से ये ईद मैं सादगी से मना रहा हूँ। कोरोना वायरस और जो तैयारा हादसा हुआ है उसमें जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, मैं उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ गो हूँ। आप सब लोग भी उनको अपनी दुआओं में याद रखें। मेरी तरफ से ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद वसीम। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले कराची में PIA का जहाज क्रैश हुआ, उसमें बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हुई और काफ़ी दुख हुआ। आए हम सब मिलकर ईद उल फितर इनके फैमिलीज के साथ सादगी से मनाए। ब्रिटेन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज। दिस न्यूज बुलेटिन वाज ब्रॉट